हेलो, कैसे आप लोग। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। फॉर्मूला ऑफ स्टार्च C6H10O5 whole N. Starch is polysaccharide. Basic fundamental unit of starch alpha D glucose. Starch exists in two forms. One is amylose, water soluble, and second is amylopectin. Existence of amylose 15 to 20% and amylopectin 80 to 85% in starch. Amylose water soluble. This is a cause when iodine solution added in a starch, the appearance of solution is a volcular. On heating, volcular is disappear. On cooling, again volcular is appear. This is a test of starch. And second is a amylopectin. Amylose linear chain polysaccharide. It have 200 to 1000 unit. Amylopectin highly branch chain polymers are polysaccharide. Each branch have 25 to 30 units and what have fundamental unit or structures unit is a alpha D glucose. Glucose aldohexose. It have aldehyde functional group first carbon, second, third, fourth, fifth and last one in the form of primary alcohol. First, second, third, fourth and fifth. H, H, OH, left side OH is a left side OH of third carbon. H, D, glucose. D notation because hydroxyl group of second last carbon configuration is right side. Then D series. Heterocyclic hexamember ring according to hemi-acetal form. OH left side 1, 2, 3, 4, 5. फिफ्थ कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H निकलेगा वह कार्बोनिल के ऑक्सीजन से बॉन्डेड होकर कार्बोनिल को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो लोकेशन है कन्फिगरेशन है कहां पर है बेटा, राइट साइड में, दैट इज कॉल्ड अल्फा फॉर्म। H first carbon bonded with fifth carbon by ether linkage, that is called internal hemiacetal form.
second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, last one in the form of alcoholic H, OH and H. This is alpha form according to Fischer concept. Hexa member heterocyclic ring of glucose resemble to pyrene. This structure stressed by the Haworth in 1927. First carbon, second, third, fourth, fifth and last carbon CH2H upward direction and OH. First carbon, second, third, fourth. Alpha D dextrorotatory glucopyranose structures OH, OH, H, OH, H. This is alpha form of glucose. हावर्थ ने इस स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है हेक्सा मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिसेंबल टू पायरेन, देन इज कॉल्ड अल्फा डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर्स. जब स्टार्च का फॉर्मेशन होता है एमाइलोज का, अनकाउंटेबल यूनिट मींस 200 to 1000 यूनिट अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ज्वाइन होती है. OH, H, OH, H, OH, लास्ट कार्बन CH2OH, H, H, OH, H. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड यूनिट, बेटा अब इसको हम इस प्रकार से बना देंगे, आप समझ गए होंगे कि यहां पर किसको लगाना है ना, OH. थोड़ा सा एक बार फिर से बना दे रहे हूं, H, OH, H, CH2OH, H, H. नेक्स्ट यूनिट, H, OH, OH, H, OH, H, CH2OH and H. तो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन अनदर यूनिट का कंडेंसेशन प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. अब इस स्ट्रक्चर्स को बेटा बेसिक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम उस लिंकेज को समझा सके. ऑक्सीजन CH2OH, एक स्ट्रक्चर्स को पूरा डेवलप कर देंगे. OH, H, OH, H, OH, H. यहां पर H है और OH निकल गए यहां से, तो इसका जो ऑक्सीजन है फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विथ फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर यूनिट. वाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. यहां से OH और ये H निकल गया. फर्स्ट कार्बन of this second alpha D glucose unit linkage with third unit के fourth कार्बन से, and this is continuous process, and this unit is called alpha glucosidic linkage, and this is structures of amylose, and basic unit is alpha D glucose.
Second is amylopectin. Amylopectin highly branch. अभी आपने देख लिया किस प्रकार से हम लोगों ने एमाइलोज को डेवलप किया। तो हम सबसे पहले एमाइलोज को बना देंगे। दिस इज एमाइलोज यूनिट। OH, H, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड CH2H लास्ट वन कार्बन। बाकी आपको मालूम है किस प्रकार का सीक्वेंस यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एमाइलोज टाइप स्ट्रक्चर्स। अब सेकेंड यूनिट को हम बनाते हैं, मीन्स सेकेंड चेन को। यहां भी आपका जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप के स्थान पर हम ये मान के चलेंगे कि आपका जो फर्स्ट कार्बन है नेक्स्ट यूनिट के फोर्थ कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमने OH क्यों फ्री रखा है, क्योंकि वो आपको भी थोड़ा समझाएंगे। ये आपका 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा आपका CH2OH। दिस इज अनदर चेन। इस प्रकार से चेन चली जा रही है। और ये कौन सी लिंकेज है बेटा, अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। तो एक ओपन चेन चली जा रही है, ये सेकंड चेन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है और ये आपका 6 नंबर का कार्बन है। तो यहां पर फिर से एक बार वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, OH एंड H। तो क्या निकल जाएगा यहां से, वाटर मॉलिक्यूल्स। इस स्ट्रक्चर्स को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एमाइलोपेक्टिन, OH, यहां पर क्या है बेटा, CH2OH। इस प्रकार से लॉन्ग चेन चली जा रही है। और यहां पर ये आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आपका ये जो फर्स्ट कार्बन है, इसके 6 कार्बन से क्या निकाल दिया गया, यहां से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो निकाल दे रहे हैं यहां से। जैसे अब निकालेंगे तो OH हो गया और यहां से H निकल गया, क्या बचेगा, CH2O। यानी ये फर्स्ट नंबर का कार्बन इसके 6 नंबर के कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा। चलिए बॉन्ड बना दे रहे हैं। CH2, and this is another glycosidic linkage between first carbon and 6 number carbon. This is the structures of amylopectin. एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर्स होता है वह हाईली ब्रांच होता है। तो एक स्ट्रेट चेन चली जा रही थी ना, ये इसमें ब्रांच हो गई 25 to 30 यूनिट हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ब्रांच बन जाती है। इसलिए एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वाटर थोड़ा सा इंसॉल्युबल होता है। स्टार्च जो आपका बेसिक स्टार्च है
स्टार्च आपका स्टार्च इज यूज एज द प्रिंसिपल फूड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एनर्जी, यानी अल्फा डी ग्लूकोज एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को फॉर्म करती है और स्टार्च फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो आपकी जो ग्लूकोज यूनिट है, जो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, वह स्टार्च फॉर्म में एक्सिस्ट करती है प्लांट के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टार्च इज यूज एज द प्रिंसिपल फूड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एनर्जी। एंड थैंक यू वेरी मच।